Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is the video on daily topic-wise news analysis where the source of reference is from the two important newspapers, that is the Hindu and Indian Express. So let's get started. So these are the list of the topic for 29th of August. So the first topic is Center notify functions of Lieutenant Governor and the Council of Minister in the JNK. The second important topic is Japan PM. They have announced that he'll be stepping down. So this is the announcement coming from the Prime Minister himself. The third topic is realization in the India-China's policy, a recent book that has been written by Mr. S. Jaishankar, who's a foreign minister of India. उन्होंने एक बुक लिखी है, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई गई है कि हमारी चाइना के साथ किस तरह से पॉलिसी होनी चाहिए. सो दिस अबाउट दैट. And the last topic is that is National Digital Health Mission. This is one of the important initiatives by Government of India. So these are the four important topics of the day. Apart from this, we'll have some MCQs question and the explanation of yesterday question. तो जो कल के सवाल थे उसके आपको मैं आंसर और explanation दोनों बनाऊंगा. So stay tuned till end of this video so that you come to know the correct answer and the explanation. And we have announced that we'll be organizing an All India Open mock test series. So this is for the upcoming prelims examination. So the All India Open mock test is scheduled for 30th of August. The timing would be from 11 a.m. For top 50 students, some of the benefits would be provided. You can find that link. आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसके लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी. And you can register yourself so that you can get benefit all these benefits that would be provided to top 50 students. Now coming to the first topic, that is Center notify function for the Lieutenant Governor and the Council of Minister in the Jammu and Kashmir. So talking about the other part and other aspects, this is important for your prelims examination, specifically Indian polity, and in the general studies paper it is very important for general studies paper 2 in the mains examination. So Union Home Ministry, जो हमारे गृह मंत्रालय है, उन्होंने नोटिफाई किया है न्यू रूल्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. और जो फंक्शंस बताई गई है, जो रूल्स में कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस बताए गए हैं कि लेफ्टिनेंट कर्नल के क्या फंक्शंस होंगे, जो हमारे काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर होंगे उनके क्या फंक्शंस होंगे, राइट. एज यू नो, इन अगस्त 2019 द पार्लियामेंट हैज़ एब्रोगेटेड आर्टिकल 370 एंड 35 है, जो जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देती है. इनको कैंसिल कर दिया गया था, रिवोक कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था. So the constitution has revoked the special status of Jammu and Kashmir and bifurcated. जम्मू कश्मीर को दो स्टेट में, दो यूनियन टेरिटरीज में bifurcate किया था, that is J&K and Ladakh. So these were the two union territory that was created out of the abrogation of Article 370 from the Jammu and Kashmir. तो ये एक थोड़ी बैकग्राउंड थी. तो बात करें कि क्या नई रूल्स बनाई गई है, जो नए रूल नोटिफाई किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से, जो हमारे गृह मंत्रालय ने जो नोटिफिकेशन दी हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या रूल्स मेंशंस हैं. तो बात करें जो ट्रांजिशन ऑफ बिजनेस की, तो जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, जो एलजी साहब होंगे, उनके पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी. दैट वुड बी पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड ऑल इंडिया सर्विसेज इंक्लूडिंग द anti-corruption. So this will fall under the executive functions. So the executive function, that the sole authority would be coming from the LG office. उसके अलावा चीफ मिनिस्टर की अगर बात करें, चीफ मिनिस्टर और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर will have no say in their functioning. I just want to give a highlight on this. No say. They would have no say on this. So the sole prerogative would be of Lieutenant Governor. He would have the sole authority whose decision cannot be challenged, right? Now talking about any matter which can affect or likely to affect the interest of any minority जो community है, या फिर scheduled caste हो, scheduled tribe के लोग हैं, other backward classes के लोग हैं, shall essentially be submitted to the Lieutenant Governor through the Chief Secretary under the intimation of Chief Minister before issuing any order. यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, कोई भी अगर कोई ऐसी इश्यूज आती है जो माइनॉरिटी के लोगों को इफेक्ट करेगी, उनके इंटरेस्ट को इफेक्ट करेगी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस के इंटरेस्ट या उनके बेसिकली जो भी उनके बेनिफिशियल चीज़ें हैं जो उनके इंटरेस्ट को कॉन्फ्लिक्ट करती है, इफेक्ट करती है, इन सारी चीज़ों के लिए एक एसेंशियली जो सबमिशन होगी वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को होगी, और ये सारी चीज़ें चीफ सेक्रेटरी के थ्रू की जाएगी. जो इंटीमेशन है वो चीफ मिनिस्टर ऑफिस को देते हुए करना है. सो हियर इट इज़ लाइक मोर ऑफ द कोलैबोरेशन एफर्ट, सब लोगों को इंटीमेशन दे करके करना होगा. यहाँ पे किसी चीज़ों के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए सोल स्पेशल पावर नहीं दिया गया, राइट. नाउ कमिंग टू द रोल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अगर बात करें,
तो COM विल बी लेड बाय द चीफ मिनिस्टर। ऐसे आप जानते हैं किसी भी स्टेट में अगर जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं या चीफ मिनिस्टर है, तो दैट इज द चीफ मिनिस्टर इज हेडेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, दे विल हैव सम सिग्निफिकेंट रोल टू प्ले। जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो इंपॉर्टेंट रोल है, CM का अपना रोल है, राइट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के भी कुछ स्पेसिफिक रोल बताए गए हैं। So this Council of Minister would have to decide the service matter of non all India services officers, जो वहाँ के ऑफिसर्स होंगे, बेसिकली जो JP, जो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विसेज कमीशन से आएंगे या और भी कोई सबऑर्डिनेट बोर्ड्स आएंगे, तो उनकी सारी चीज़ें सर्विस मैटर दैट वुड बी डिसाइडेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मीन्स द स्टेट लेजिस्लेचर विच इज नॉट मोर देयर, बट अकॉर्डिंगली वो सारी वहाँ पे डिसाइड होगी। नाउ प्रपोजल टू इम्पोज अ न्यू टैक्सेस वुड बी अगेन डिसाइडेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लैंड रेवेन्यू की जो चीज़ें हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसाइड करेंगे। सेल, ग्रांट एंड लीज ऑफ द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, एंड द लास्ट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन डिपार्टमेंट ऑफ द ऑफिसेज एंड द ड्राफ्ट लेजिस्लेशन। सो दीज आर अंडर द एम्बिट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये सबके लिए जो जिम्मेवारी तय की गई है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होगी। तो स्पेशल पावर की अगर बात करें, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनको कुछ स्पेशल पावर दी गई है। तो इन केस ऑफ अगर डिफरेंस होती है ओपिनियन बिटवीन द LG एंड द मिनिस्टर, तो यहाँ पे क्या होगा, व्हेन नो एग्रीमेंट कुड बी रीच्ड इवन आफ्टर अ मंथ, एक महीने तक अगर किसी चीज़ की कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाती है, कोई एग्रीमेंट तय नहीं हो पाता है, कोई कंक्रीट रिजल्ट नहीं निकलती है, तो जो डिसीजन होगी लेफ्टिनेंट गवर्नर की, दैट डीम्ड टू हैव एक्सेप्टेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जिस तरह से प्रेसिडेंट के केस में अगर बिल लोकसभा राज्यसभा अगर पास नहीं करती है कुछ टाइम तक के लिए 60 डेज के बाद, तो दैट डीम्स की वो अपने आप ऑटोमेटिकली पास माना जाता है। तो यहाँ पे भी कंडीशन अप्लाई करेगा। कोई अगर ऐसी डिस्प्यूट होती है, कोई डिफरेंसेस है ओपिनियन को लेकर के, और एक महीने तक उसका जवाब अगर नहीं दिया जाता है हमारे COM की तरफ से, तो इट वुड बी डीम्ड कि दे हैव पास्ड इट, दे हैव एग्रीड, राइट। सो दिस इज अ स्पेशल पावर विच हैज बीन प्रोवाइडेड टू द LG ऑफिस। नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स की अगर बात करें, कितने डिपार्टमेंट फॉर्म्स किए गए हैं, तो इनिशियली गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन दी है, जो हमारी MHA है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है, उनके मुताबिक जो टोटल अभी डिपार्टमेंट होगी, दैट वुड बी 39 डिपार्टमेंट in the union territory. These include, some of these are school educations, agriculture, higher education, horticulture, elections, general administration, home, mining, power, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ट्राइबल अफेयर एंड ट्रांसपोर्ट। तो मैं आपको ये ब्रॉडली बता रहा हूँ, ये जो कोर मिनिस्ट्रीज हैं, जो डिपार्टमेंट है, ये होंगे। इसके अलावा और जो है वो भी होंगे। तो द टोटल नंबर ऑफ द डिपार्टमेंट वुड बी 39, राइट। नाउ लेट्स मूव अहेड to the other topic, that is Japan's PM to step down. Basically this is the official announcement that has come from the Prime Minister himself. तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, कई और बैंकिंग के भी एग्जामिनेशन है या स्टेट PTS के भी एग्जामिनेशन है, वहाँ पे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट मेंस, इट इज़ नॉट दैट रिलेवेंट फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, बट मेंस में जो थोड़ी सेक्शन है आपके इंटरनेशनल रिलेशन को, जहाँ पे इंडिया और जापान के रिलेशंस है, वहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सो दैट यू कैन राइट दैट ऑन द मेंस एग्जामिनेशन। तो मैं कुछ फोल्डर पॉइंट आपको आगे बताऊँगा। सो लेट्स सी। तो रिसेंट अनाउंसमेंट की गई है, प्राइम मिनिस्टर जो है वहाँ के शिंजो आबे, उन्होंने अनाउंस किया कि ही हैज़ डिसाइडेड टू स्टेप डाउन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। और आबे सेज की उनकी जो हेल्थ कंडीशन है उसके वजह से वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू नहीं रहना चाहते हैं। ही हिमसेल्फ हैज़ डिसाइडेड दैट ही वुड बी स्टेपिंग डाउन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर पोजीशन, राइट। तो शिंजो आबे हैज़ प्रमोटेड अ क्लोज टाइज विथ लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज इंक्लूडिंग इंडिया एंड चाइना। सो टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड जापान बायलैटरल रिलेशनशिप, जापान इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ बेसिकली इंडिया, राइट। तो हमारी और जापान की जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छी रही है। एंड जापान इज़ द वर्ल्ड third largest economy, talks about the technological developments, talk about the anything, you know, space sector या फिर और भी चीज़ों पे। So Japan has a very good command, you know, they are the superior, they have some good quality, everything is very good in talking about the Japan economy. So they are the third largest economy in the world. और इंडिया के साथ अगर रिलेशनशिप की अगर बात करें, तो कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ऐसी क्या रीज़न थी जो शिंजो आबे ने रेजिग्नेशन के लिए ऑफर किया। सो ही इज़ सफरिंग फ्रॉम द रीअकरेंस ऑफ, बेसिकली उनको पहले भी इस तरह की प्रॉब्लम हुई थी जिसको कहते हैं अल्सरेटिव कोलोटिस, राइट। दिस इज़ अ डिजीज़ ऑन द कोलोन रीजन, बेसिकली इन द जो कोलोटिस होती है
अल्सर वहाँ पे क्रिएट हो जाता है एंड दिस इज़ वाई ही सफर्ड। उसी के मुताबिक इन्होंने कहा कि रीअकरेंस हो रही है, ही इज़ नॉट इन द हेल्दी पोजिशन दैट ही वुड बी कंटिन्यूइंग, सो लॉन्गर ही वुड नॉट बी कंटिन्यू सर्विंग एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो अभी उनके 1 साल बच रहे हैं, जो पूरे टेन्योर में 1 साल बच रहे हैं, सो ही वॉन्ट कि अगर जब तक कोई भी नए अपॉइंट ही नहीं होते हैं, टिल टाइम ही विल बी कंटिन्यूइंग एज द प्राइम मिनिस्टर, आफ्टर दैट ही विल बी स्टेपिंग डाउन। सो ऑफिशियली उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है, बट जब तक कोई नए लोगों को वहाँ पे अपॉइंट नहीं किया जाता, ही वुड बी द अंतरिम प्राइम मिनिस्टर। नॉट टॉकिंग अबाउट द टाइज विथ इंडिया, इंडिया के साथ जैसे मैंने आपको बताया बहुत अच्छे कॉपरेशंस रहे हैं जापान के। तो इंडिया जापान एंड कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो हुई थी, जिसको कीपा भी कहते हैं, CEPA, सो दैट कम इनटू फोर्स इन 2011 अगस्त, और ये एक बहुत ही कम्प्रिहेंसिव रही जहाँ पे एग्रीमेंट्स किए गए थे इंडिया के थ्रू, एंड दिस हैज़ अल्टीमेटली हेल्प इंडिया अ लॉट। उसके बाद 2014 में इंडिया एंड जापान हैज़ अपग्रेडेड देयर रिलेशनशिप टू स्पेशल स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप, right? So this is again one of the important initiatives in terms of India and Japan relationship. Apart from that, we have a good civil nuclear cooperation with the Japan, and Japan participants in the annual बेसिकली बात करें जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, तो इंडिया और यूएस के साथ बीच में या फिर जापान के साथ कोलैबोरेशन में जो मालाबार नेवल एक्सरसाइज है, दैट वाज ऑलवेज बीइंग कंडक्टेड ऑन द रेगुलर बेसिस। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने जापान के साथ एग्रीमेंट किए, बट दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। अगर आप स्पेसिफिकली इंडिया जापान के रिलेशनशिप के बारे में मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर तैयार कर रहे हैं, तो आपको और फोर्डर पॉइंट इसमें लिखने होंगे। सो यू नीड टू सर्च इट आउट, थोड़ा गूगल कर लें और अपने आंसर्स में कुछ पॉइंट्स ऐड कर लें, सो दैट अगर इंडिया और जापान के एक्सक्लूसिवली क्वेश्चंस आते हैं आपको लिखने के लिए, तो आप उसमें और चीज़ें ऐड करके ही लिखेंगे, इतने कम पॉइंट से आपके काम बनेंगे नहीं वहाँ पे, राइट? सो दीज आर समथिंग इन कंटेक्स्ट ऑफ द न्यूज़पेपर। ना उसके बाद बात करें तो जिस तरह से रिलेशनशिप बढ़ी है बोथ इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रंट, सिक्योरिटी कोऑपरेशंस में क्वाड नाम का इनिशिएटिव लिया गया था, जहां प्रायोरिटी दी गई थी। जापान ने अपने फॉरेन पॉलिसी में इंडिया को काफ़ी हद तक प्रायोरिटी दी है इन्वेस्टमेंट के ख्याल से। उसके अलावा इंडिया एंड जापान शेयर अ रोबोस्ट टाई इन टर्म्स ऑफ द कोऑपरेशन इन टर्म्स ऑफ डिफेंस सेक्टर, जहाँ तक बात करें सुरक्षा की, वहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कॉपरेशन इन द ट्रेड, राइट? तो जो हमारी ट्रेड एंड कॉपरेशन है वो भी काफ़ी अच्छे दर्जे पे, बिलियंस डॉलर पे वी आर ट्रेडिंग विद द जापान। एंड इन द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप द डील विद द सीन एज अ इकोनॉमिक काउंटर टू चाइना। तो जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप थी इंडिया और जापान के बीच में, एक काउंटर के तौर पे देखा गया चाइना के साथ जो रिपरकशन डिसीजन लिए जाते हैं इंडिया के अगेंस्ट, उसके लिए, राइट? सो दीज वर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट्स and some of the important initiatives taken both from the India and Japan. Now the third topic is National Digital Health Mission, जिसको NDHM भी कहते हैं। This is in the Indian Express page. आपको आज के आर्टिकल जो एडिटोरियल पेज है वहाँ पे ये चीज़ें मिल जाएगी। This is written by हर्षवर्धन, he is a Minister of Health। इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं किस तरह से जो डिजिटल हेल्थ मिशन है वो एक तरह से बूंद साबित होगी इंडिया के हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर या जो पब्लिक की एक्सेस टू हेल्थ है उसको लेकर के। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरल स्टडीज़ पेपर 3 एंड इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर जनरल स्टडीज़ पेपर 2। बात करूँ प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे सवाल 2 स्टेटमेंट बेस्ड पूछे जा सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, जो कि 74th इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में प्राइम मिनिस्टर ने इसको क्लियर किया था। इन्होंने अनाउंस किया कि कुछ इस तरह की चीज़ें आने वाली हैं इंडिया में। एंड द लॉन्च ऑफ द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन कम्स एट द टाइम जहाँ पे कंट्री के पास कोविड-19 के सिचुएशंस को देखते हुए जो पेंडेमिक है उसके नंबर्स, उनके केसेस काफ़ी हाई हैं। स्टिल वी डू नॉट हैव अ वैक्सीन फॉर इट। इंडिया इज़ ऑलमोस्ट ऑन द फेज़ 3। कुछ हमारे जो 2 वैक्सीन हैं, कोवैक्सीन और एस्ट्राजेनेका के साथ जो कोलैबोरेशन है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, उसमें 2 वैक्सीन ऐसे हैं जो कि फेज़ 3 में जाने वाले हैं बहुत ही जल्द। Now the mission will go through the historic days, जैसे कि गेम चेंजर साबित होगी ये इनिशिएटिव जो 21st सेंचुरी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। एंड इट विल इन्हांस द इफेक्टिव हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन द कंट्री। कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस की बात करें अगर NDHM की, जो कि आपके पीटी में भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, दोनों यहाँ पे चीज़ें पॉइंट हेल्पफुल है।
सो NDHM जो है एक तरह सा बैकबोन बनाएगी टू क्रिएट एन इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड विथ इस की एप्लीकेशन। जिस तरह से बात करें, जो इसके जो कंपोनेंट्स होंगे NDHM के, वो होंगे हेल्थ IDs में होगी DG डॉक्टर का बेसिकली प्रोविजंस रखा गया है, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर्स, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स, टेलीमेडिसिन और E-फार्मेसी। सो दीज आर सम ऑफ द की इंग्रेडिएंट और द कंपोनेंट्स ऑफ द NDHM। उसके बाद NDHM इज अ पर्पसफुल स्टेप्स टूवर्ड्स अचीविंग द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जो हमारी SDG है उसके तरफ एक निर्णायक कदम है, एक पॉजिटिव रोड मैप है SDG को अचीव करने के लिए। एंड इट कंपासेस द की एस्पेक्ट्स ऑफ द गोल इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल रिस्क प्रोटेक्शंस, access to quality of essential healthcare services and medicine and vaccine for all। तो ये जो रोड मैप है, जो ब्रॉड दायरा रखा गया है इसके पीछे, वो ये है, राइट। सो दिस इज द माइंडसेट, दिस इज द रैशनल बिहाइंड विच द NDHM हैज बीन क्रिएटेड। नाउ सिंस NDHM लॉन्च की अगर बात करें, तो जो की स्टेक्स होल्डर होंगे हेल्थ सेक्टर को लेकर के, जैसे हमारे डॉक्टर्स हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, सिटीजन हैं, ये सारी चीज़ों की जो कंसर्न है उसे इस प्रोजेक्ट में इंक्लूड किए जाएंगे और स्टेक होल्डर से ओपिनियन भी लिया जाएगा सरकार की तरफ से। ना कुछ प्रिंसिपल हाईलाइट की अगर मैं बात करूं NDHM की, NHDM की, तो NDHM में कुछ वॉलंटरी स्कीम है, जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरुआत में, हेल्थ ID जो है दैट इज इंटायरली फॉर द वॉलंटरी ऑफ द सिटीजन। ये किसी पे जबरदस्ती, इट वुड बी नॉट मैंडेटरी, इट इज समथिंग विच इंडिविजुअल हैज टू चूज, राइट। तो प्रोवाइड करनी होगी एक्सेस टू शेयरिंग ऑफ पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड। दिस वुड बी द प्रेरोगेटिव ऑफ हेल्थ ID कार्ड होल्डर। आपको, मुझे, सब इंडिविजुअल को एक डिसीजन लेने की ये दी जाएगी, परमिशन दी जाएगी। इफ़ यू वांट यू कैन कंटिन्यू, इधर वर्स इफ यू आर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड, आपको कोई करने की जरूरत नहीं है। सो द कंसेंट ऑफ द हेल्थ डेटा ओनर इज रिक्वायर्ड टू एक्सेस दिस इंफॉर्मेशन एज अ पार्ट ऑफ इट। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो ओनर के साथ जो परमिशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेंट लेना होगा। Or NDHM has been built within the universal fundamental right and the pieces of legislation such as Aadhaar Card Act, IT Act of 2008 as well as the Personal Data Protection Bill 2019। क्योंकि इसको लेकर के भी एडिटोरियल आए थे कि जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शंस हैं वो किस तरह से इंटीग्रेट करेगी हमारे NDHM में। तो जो पर्सनल डेटा, क्योंकि किसी भी इंडिविजुअल के पर्सनल डेटा को आप इस तरह से डायरेक्टली नहीं देख सकते हो बिना उसके परमिशन के। राइट टू प्राइवेसी सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कहा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी जजमेंट्स भी हैं। तो आप इस आंसर को उस हिसाब से भी देखना कि जो फंडामेंटल राइट्स है या जो राइट टू डेटा प्रोटेक्शन है, वो सारी चीज़ों को इंश्योर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इसको आप कंसर्न के तौर पर भी लिख सकते हो एग्जामिनेशन में। Now NDHM aims to build digital health nation for a pragmatic principle of think big, smart, जो start small और scale fast। So ये तीन जो pragmatic principle है, इसी पे ये काम करेगी। कंक्लूजन की अगर बात करें, तो जो सिटीजन के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए जो चीज़ें की गई है, दैट वुड बी द कोर डिज़ाइन ऑफ द NDHM एंड इट विल रेडिकली चेंज इंडियाज डिलीवरी लैंडस्केप बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। जो हेल्थ है, जिस तरह से अफोर्डेबिलिटी है, एम्पावरमेंट करने की ज़रूरत है लोगों को, जो प्राइवेसी की इशू मैंने आपको बताया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी अपने एसेंट दिए हुए हैं कि राइट टू प्राइवेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सिक्योरिटी बाय द डिज़ाइन, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही जो हमारी नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है उसको आगे बढ़ाना होगा। सो दीज इंपॉर्टेंट थिंग्स वुड बी द बैकबोन। ये एक तरह से बैकबोन का काम करेगी फॉर क्रिएटिंग एन इंटीग्रेटेड एंड डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर in the country like India, where all the people definitely required to come under the ambit of social security and the health security provided by the government of India, right? तो ये conclusion होगी इसकी। तो बात करें एक लास्ट टॉपिक की, दैट इज रियलिज्म इन द इंडियन चाइना पॉलिसी। बेसिकली जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है S जयशंकर, उन्होंने एक बुक लिखी है, उसमें चाइना के साथ क्या रिलेशनशिप होनी चाहिए उसको लेकर के बातें की गई है। तो बुक के नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ये देख लें, और ये आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हेयर एंड देयर इंपॉर्टेंट है। बात करें अगर जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में, तो कुछ फोल्डर पॉइंट आप वहाँ पे भी यूज़ कर पाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर, आई जस्ट कोटेड हिम नेम बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट, आप इसको पता चले कि किसने बुक लिखा हुआ है, राइट। सो द न्यू बुक जिसका नाम है इंडिया चाइना पॉलिसी द राइट वे बी क्रिटिकल एंड टू इंडिया प्रोस्पेक्ट, दिस इज द नेम ऑफ द बुक।
सो यहाँ पे बताई गई है किस तरह से हमारे जो ऑनगोइंग बियॉन्ड ट्रेडिशन है उसमें क्या क्या एजम्पशंस है और उसको कैसे ओवरलुक करना है और प्रैक्टिकली इम्प्लीकेशंस क्या है, ये सारी चीज़ों को उस बुक में डील की गई है. सो द बुक एनालिसिस इन डिटेल अबाउट द ट्विस्ट एंड टर्न्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज रिलेशनशिप विद चाइना एंड रोड अहेड, किस तरह से जो हमारे रिलेशनशिप है उसका क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए. सो जयशंकर हिमसेल्फ इज़ अ फॉरेन सेक्रेटरी, उन्होंने 4 साल वहाँ पे सर्व किया है एज एन एम्बेसडर टू चाइना. सो ही गुड प्रीटी एम्पल एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ द इंडिया चाइना रिलेशन. उनको काफ़ी आइडिया है. दैट इज़ वाई व्हेन इट्स कम्स टू इंडिया एंड चाइना रिलेशन ही इज़ द फर्स्ट पर्सन हु हैज़ बीन टेकन द एडवाइस. उनसे काफ़ी एडवाइस ली जाती है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो या ही हिमसेल्फ इज़ लीडिंग द फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर. तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के मुताबिक या फिर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, सो दे ऑलवेज सीक परमिशंस फ्रॉम द एस जयशंकर, who is a well equipped foreign secretary who has served 4 long years in the China. Now बात करें challenges की, तो challenges faced to manage more and more powerful neighbor while assuming its own rises. तो इसमें भी एक बैलेंस बनाने की जरूरत है. एंड द बॉटम लाइन इज जो रिलेशनशिप है दैट शुड बी क्लियर, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मस्ट बी प्रिवेल इन द बॉर्डर एरियाज एंड इट शुड बी मेड इन द लास्ट 3 decades टू बी जियोपैडाइज. किसी भी तरह का कोई पक्षपात करने की जरूरत नहीं है. रिसेंटली आपने देखा होगा जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसमें ऑलमोस्ट इट इज़ लॉन्ग 3 months जब डिस्प्यूट ऑलरेडी चल रही है. काफ़ी हद तक मिलिट्री लेवल टॉक्स भी हुई हैं, बट अभी वी हैव नॉट कम टू एनी कंक्लूजन. प्राइम मिनिस्टर हो बेसिकली जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैं MOD, he would be visiting to China in the September end. Let's see what conclusion is coming. जो फॉरेन लेवल की जो एक्सटर्नल लेवल की जो टॉक्स हैं वो भी प्लेस्ड है, वो भी अलाइंड है, इस तरह से वहाँ पे भी बात होगी. अभी तक कुछ कंक्रीट अगर मैं बताऊँ तो दैट न्यूट्रलिटी हैज़ बीन मेंटेन, बट वी नीड टू मेक सम प्रोग्रेस जहाँ पे एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होगी कि इस तरह की चीज़ें फ्यूचर में कभी नहीं होगी. तो प्रेजेंट चीज़ों को स्टॉप करना इज़ नॉट इन सॉल्यूशन. यू नीड टू हैव अ रोड मैप एंड एन एग्रीमेंट जहाँ पे फ्यूचर में इस तरह की ऑकरेंस दोबारा नहीं हो पाए. तो जब भी आप मेंस में आंसर लिखें तो एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जरूर छोड़े आंसर में, सो दैट द एग्जामिनर इज ऑफ आइडिया कि आपको एक वे फॉरवर्ड या फ्यूचरिस्टिक भी पता है इस एंगल का. नाउ कमिंग टू द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस, जो कल के सवाल थे उसके मैं आंसर आपको बता दूँ. सो द फर्स्ट क्वेश्चन, द आंसर इज सी, that both of the statement is correct, that the new UPI feature could be used more for money transfer and latter for providing the commitment to present. Customer can be pre-authorized for the transaction and pay on the later date. So these are the features of the UPI. Or in addition, the UPI is a saving account. Customer can have link to their overdraft account. A customer will be able to transact instantly. Benefit associated with the overdraft account available to the user. UPI will serve as an additional digital challenge access to the overdraft accounts. So these are the important explanation. I have taken this from the Hindu and Indian Express. Now coming to the second question, the correct option here is C. The president can nominate 2 members of the Lok Sabha from the Anglo-Indian community, and money bill can be introduced in the parliament with the prior permission and recommendation of the president only. So this would be the correct explanation. This is from the M. Lakshmikant of the Indian Polity. Now let's move ahead with the MCQs question of the day. So the first question is from the culture. Consider the following statement. The image of the river goddess are usually found in the entrance of the Garbhagriha in the Dravidian temple architecture, or Dwarpalas are usually found in the gateways or Gopuram of the Nagaraj temple. So if you have read NCERT, if you have read Nitin Sanghania, this would be a cakewalk for you. It would be easily able to answer these questions. So choose the correct option A, B, C or D. Whatever you feel is the correct answer, do write your answer in the comment section down below. The second question is from the Indian economy. With reference to inter-creditor agreement, consider the following statement. It is a part of Project Shashakt as a plan to address the problem resolving the bad loans, and it aims to resolve the loan account within the minimum amount of 100 crores. So this was there frequently in the newspaper. If you have must be familiar with the newspaper, you could easily answer these questions. So just let me know how many of you have read this and write your answer in the comment section. आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने आंसर जो है ABCD ऑप्शंस के साथ बता सकते हैं. कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, राइट? And those of you who are new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube, and do not forget to hit a like button on this video.
अगर कोई भी कंसर्न हो तो हमें ज़रूर बताएं. विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू. फॉर टाइम बिंग आई एम साइनिंग ऑफ. विश यू ऑल द बेस्ट. स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू सो मच.